You want to angle the camera a little bit. Okay, good morning, everyone. आप सबको गुड मॉर्निंग। So, yesterday we did a complete overview of all the events and everything that's happening when it comes to the end times. जब अंतिम समय की बात आती है तो कल हमने देखे कि बहुत सारे ऐसे अवलोकन को देखे जो भी घटनाएं होगी करके। We started with the rapture, हमने जो कलीसिया उठा लिए जाने के बारे में देखे थे, then we saw what are the events that will happen. तो उसके बाद एक एक घटना जो होगी उसके बारे में हम देखे। Then we saw the 3 sets of judgments उसके बाद 3 समूह के जो न्याय है उसको हम देखे थे, and how these judgments will happen on the different nations of the world. कैसे अलग अलग संसार के देशों के ऊपर ये होगा इसको हम देखे थे। And towards the end of all these judgments, और इन सारे न्याय के अंत में yesterday we looked at the battle of Armageddon. तो हम कल देखे थे अर्मगेदोन का युद्ध के बारे में। So there will be 2 attacks against Israel, इसराइल के ऊपर जो है 2 आक्रमण होगी, empowered by the beast. जो पशु के द्वारा उसे सामर्थ दिया गया The first जाएगा। attack is Russia, Gog and Magog, modern day Russia and Turkey. गोग और मैगोग जो कहते हैं अभी आधुनिक जो रशिया और तुर्की, They attack Israel. वो जो है इसराइल पर आक्रमण करेंगे। But Israel in its supernaturally will be able to defeat the Russian army. लेकिन इसराइल जो अलौकिक सामर्थ के द्वारा जो है रशिया के जो सेना है उसको हरा देगी। Then it will lead to the battle of Armageddon, where there will be 250 million and more soldiers attacking Israel from different parts. तो उसके बाद दूसरा आक्रमण में जो है 250 जो मिलियन कहते हैं, 10 लाख उसके साथ जोड़ लीजिए, इतने सैनिक लोग उनके विरोध में आएंगे। Tell me what happens in the battle of Armageddon? तो अर्मगेदन के युद्ध में क्या होता है मुझे बताइए। 2 important events. 2 मुख्य बातें हैं। Sorry? Something will happen before these soldiers come to the valley of Jehoshaphat. तो यहोशाफात के तराई में ये लोग आने से पहले कुछ तो होता है। Yes, Parat. very good. The river Euphrates dries up. परात नदी जो है सूख जाएगी। So it allows the enemies from every direction to come to the valley of Jehoshaphat. तो ये जो सारे शत्रुओं को जो है यहोशाफात के तराई में आने के लिए सहायता करेगी। Yesterday we saw how that valley is, right? कल हम देखे थे वो तराई कैसे है करके। You see the Mount of Olives and then there's the valley. हम जैतून के पहाड़ को देखें और वहां के तराई को देखें। So when the enemies come converge to attack Israel, जब शत्रु जो है इस्राएलियों पर आक्रमण करने के लिए एक साथ आते हैं, this is the second coming of Jesus Christ. ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। Jesus comes and he puts his feet on the Mount of Olives. तो यीशु मसीह आते हैं और अपना पैर को जो है जैतून के पहाड़ पर रखते And the हैं, Mount of Olives breaks. और जो जैतून पहाड़ जो है 2 भाग हो जाता है। And what does Jesus do to these enemies? तो यीशु मसीह अपने उनके शत्रुओं को क्या करते हैं? Very good. He blows on them and destroys them. वो उनके ऊपर फूंकते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। Okay, so then what happens to the beast and Satan and the false prophet? What happened to all of them? उसके बाद उस पशु, शैतान और झूठे भविष्यवक्ताओं को क्या होता है? Satan is doomed for 1,000 years. तो ये शैतान जो है 10,000 साल के लिए जो है बांधा जाता है। Okay, so now what happens after that? Immediately after this whole event? ये सारे घटने होने के बाद तुरंत बाद क्या होता है? Yeah. The beginning of the 1,000-year millennium. तो 1000 साल का यीशु मसीह का शासन जो है शुरू होता है। So yesterday we saw what all happens in the 1,000-year millennium. कल हम देखे थे कि 1000 वर्ष के जो शासन काल में क्या कुछ होता है। And I think all of us will know this by now. तो मैं सोचता हूँ कि अब तक जो है हम सब इसको जानते हैं। Yes or no? हाँ या नहीं? You want to go over it again or should we go ahead? आप चाहते हैं कि हम उसी में फिर जाएं या आगे बढ़ें? Okay. So then we saw that after the 1,000 years, Satan has been released तो हम देखते हैं कि 1000 वर्ष के बाद जो है शैतान को छोड़ा जाता for है a little while. कुछ समय के लिए। Now we don't know how long that little while is. कुछ समय यानी वो कितना लंबा समय के हम नहीं But जानते हैं, Satan will be able to bring people to himself even in that short time.
उस कम समय में भी शैतान जो है अपनी ओर लोगों को लाने की कोशिश करता It's his है। last attempt to deceive people. ये उसका आखिरी जो कोशिश रहती है लोगों को भरमाने के लिए। And then comes the great white throne judgment, उसके बाद जो है बड़ी श्वेत सिंहासन की न्याय आता है। where Satan is thrown into the lake of fire, शैतान जो है आग की झील में डाल दिया जाता है, and all the unbelievers will stand at the great white throne judgment. सारे अविश्वासी जो है बड़ी श्वेत सिंहासन के न्याय के सामने खड़े रहते हैं। चाबी दे दे सीधे दुकान की। Yeah. So all of them, all the unbelievers will stand at the great white throne judgment to give an account of their life. सारे अविश्वासी जो है बड़े श्वेत सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे अपने जीवन के लेखा देने के लिए। Okay, so what happens after the great white throne judgment? ये बड़ी श्वेत सिंहासन न्याय के बाद क्या होता है? New heavens, नया and the- आकाश, So नई पृथ्वी। the Lord Jesus will change everything, the way things are looking. There will be no earth. तो यीशु मसीह जो अभी जो दिख रहा है वो सब चीजों को बदल देंगे, तो अब जो है पृथ्वी नहीं रहेगी। Don't say, where is India? Where's my house? तो It's all ऐसा ना gone. कहे कि भारत कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, ऐसा ना बोले। The entire earth will be destroyed. पूरा पृथ्वी जो है विनाश किया जाएगा। There will be a new heavens and a new earth, a celestial body. तो वो जो एक नया आकाश और नई पृथ्वी होगी जो स्वर्गीय वस्तु। Right? Okay, now today we look at the book of Daniel. Before we go there, Daniel is one of the greatest prophets of the Old Testament. आज जो है हम दानियल का पुस्तक देखेंगे, उससे जाने से पहले दानियल जो है पुराना नियम का And सबसे बड़े भविष्यवक्ता में से एक है। Daniel, he's in Babylon in captivity. दानियल जो है बाबिलोन में है, बंधुआई में है। And we know the story of Daniel. God used him mightily. He was the administrator over 3 kings. तो हम जानते हैं परमेश्वर जो है दानियल को बहुत ही सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किए और वो जो 3 राजाओं के नीचे प्रशासन किया। But God speaks to him not only about that period, but also of the things that are yet to come. लेकिन परमेश्वर उससे बात किए केवल उस समय के लिए नहीं, लेकिन आने वाले बातों के लिए भी उससे बात किए। So think of this. Daniel is in captivity, सोच कर देखिए दानियल जो है बंधुआई में है, but God is speaking to him about the future of things that have not even happened even now. तो परमेश्वर जो है उसके साथ ऐसे बातों को करते हैं जो अभी भी नहीं हुआ, उन बातों को भी उसे बताए हैं। Now, to help us understand this portion, इस बात को समझने के लिए, सहायता करने के we लिए must understand that Daniel is writing this thousands of years before. हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि दानियल जो है हजारों साल पहले इसको लिख रहा है। Remember, in chapter 1, we said when you're interpreting scripture, you should understand where they are, what time zone, what culture they are writing in. पहला पाठ को पढ़ते हुए हम देखे थे कि आज हमको समझने के लिए, वचन को समझने के लिए देखने के वो कहाँ पर है, किस समय काल में है, किस संस्कृति में है। See, John the apostle, when he's writing in Revelations, he doesn't know, he's writing from his understanding during that time. यूहन्ना प्रेरित यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य को लिख रहा था तब जो उसकी जो समझ थी उसके अनुसार वो लिखा है। He doesn't know about media, technology, all of that. उसको मीडिया या तकनीक के बारे में कुछ नहीं पता है, Because it wasn't even there that time. क्योंकि उस समय वो नहीं था। But he's writing in his own understanding. Okay, this is what will happen. लेकिन वो अपनी समझ के अनुसार लिख रहा है कि हाँ ऐसा होगा। The world will see these 2 witnesses. ये संसार जो ये 2 गवाहों को देखेंगे, But he doesn't know about, media, TV, all of these things. लेकिन उस समय उसे ये नहीं पता था कि टीवी के बारे में या मीडिया के बारे Then you में look at language. और भाषा के बारे में देखें। See, even in India, now, if you look at Indian languages, if you look at English, Hindi, Kannada, they all have a different style of writing. तो आप अगर हमारा भारत देश को भी ले लेंगे तो भारत में देखिए अंग्रेजी, हिंदी है, कन्नड़ा, ये सभी भाषाओं में जो अलग अलग लिखने के जो एक प्रणाली होती है। Yes or no? हाँ या Right? नहीं? It's a different style. तो अलग अलग शैली होती है।
in the Bible, if you read if you read English and you read Hindi, Hindi will be a different style. तो आप अगर बाइबल को ही ले लीजिए, अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे तो दोनों में जो लिखने का जो तरीका है या तो शैली है अलग होगी. Right? So the same way, we must understand Daniel is writing during his time where some things are we may not understand now. तो जो दानियल उस समय में रह रहा है जो जिस बातों को जो है अभी हम नहीं समझ सकते हैं वैसी बातों को लिख So रहा है. he's writing in the language of his time. वो जो अपना समय का जो भाषा है उसमें लिख रहा है. But you and I, it is our responsibility to translate that and to bring an understanding. What does that mean? तो आपका और मेरा ये जिम्मेदारी है कि इसे सही तरह से समझें और इसका सही अनुवाद करें, इसका मतलब क्या होता है. Okay, so we're going to look at Daniel chapter 2 first. हम पहले दानियल अध्याय 2 देखेंगे. And we will read. Anyone know about Daniel chapter 2? Anyone know that dream? क्या किसी को दानियल 2 अध्याय के सपना पता है? नेबूकदनेस्सर जो सपना देखता है. The king Nebuchadnezzar sees a dream. Okay, you know the dream? Okay. Now, why is this important? क्यों ये महत्वपूर्ण है? Because this dream is directly related to what is going to happen ahead and in the end times. तो ये जो है सीधे तौर पे जो अंतिम समय में जो होगा उसके साथ जुड़ता है. Now, this is interesting. God is giving the dream to somebody who is a pagan, a Gentile king. तो ये बहुत ही रोचक बात है कि परमेश्वर जो इस स्वप्न को जो है एक अविश्वासी है उस राजा को दे रहे हैं. And in Daniel chapter 2, दानियल 2 अध्याय, Nebuchadnezzar has this dream नबूकदनेस्सर एक सपना देखता है and he doesn't know what the dream means. और इसका सपना का अर्थ क्या है वो नहीं समझ रहा था. It's a strange dream. वो बहुत ही अजीब एक सपना था. So he calls the astrologers and says, "Tell me what my dream is and interpret and tell me what it means." तो ज्योतिषियों को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा स्वप्न क्या है बताओ और उसका मतलब क्या है वो बताओ. Because Nebuchadnezzar was disturbed with this dream. He knew this dream is important, it has a meaning, but I'm not able to interpret the meaning. क्योंकि नेबूकदनेस्सर अंदर ही अंदर बहुत परेशान था क्योंकि जानता था कि स्वप्न महत्वपूर्ण है, इसका कुछ मतलब है, लेकिन ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. So finally Daniel comes into the scene. अंत में जो है दानियल वहां पर आता है. Said, "Okay, Daniel, we heard that you interpret dreams." तो दानियल को बोलते हैं कि हमने सुने कि तुम जो है स्वप्नों का अर्थ बताते हो. So the king says, "Daniel, you interpret my dream and tell me what it means." तो तब दानियल से राजा बोल रहे हैं कि तुम मेरा स्वप्न को बताओ और स्वप्न का अर्थ भी बताओ. So Daniel said, "Okay, king, give me 1 day's time. I will go, I will pray, and I will come back and tell you what your dream is and interpret your dream." तो दानियल बोलते हैं कि राजा मुझे 1 दिन का समय दो, मैं जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, फिर मैं आपका स्वप्न भी बताऊंगा, स्वप्न का अर्थ भी बताऊंगा. Now think of this. इसके बारे में सोचिए. Daniel is living in captivity in a pagan nation. तो ऐसा एक जो मूर्ति पूजा करते हैं वैसे जगह में दानियल बंधुआई में है. And the dream has come to a pagan king. एक ऐसा अन्य जाति राजा, मूर्ति पूजा करने वाले उस राजा को ये स्वप्न आता है. Now Daniel is going to tell the king what the dream is and interpret it. अब दानियल जो है उस राजा को जो है स्वप्न क्या है वो बताएगा और उसका अर्थ भी बताएगा. Okay, so if you look at Daniel chapter 2 verse 31 onwards, यदि आप दानियल 2 अध्याय के 31वें वचन से देखेंगे, you will see. Let's begin to read that. आइए उसे पढ़ें. दानियल 2 अध्याय का वचन 21. Can anyone just put that picture? Let's read Daniel chapter 2 verse 31 onwards. कोई पढ़े दानियल 2 अध्याय का 31वां वचन से लेकर. हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी, उसका रूप भयंकर था. उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसके पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे. फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी की थे उनको चूर चूर कर डाला. तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा.
और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यो ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है, और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा में मिला हुआ देखा था। जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे के कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा और मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का राज्य एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर Till डालेगा, verse 44. And finished. और वह सदा स्थिर रहेगा। Yeah. Okay. So the dream is explained. Can you put it here as well? ये जो स्वप्न जो है यहाँ समझाया गया है। Okay. So look at this dream. ये सपना को देखिए। The head is of gold. सर जो है सोने का है। Then you see the shoulder, the breast area. जो भुजाएं और उसकी छाती जो है, The head of the statue is pure gold. His chest and arms of silver. उस चांदी के थे वो। Its belly and thighs of bronze. उसके जो पेट जो है पीतल के थे। The legs of iron. It's partly iron and partly baked clay. उसके टांगे तो लोहे के और उसके पाँव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। While you were watching, a rock was cut out, but not by human hands. वो देखते देखते एक पत्थर जो बिना किसी के खोदे हुए It struck the statue on its feet अपने आप उकड़कर उस मूर्ति के पाँवों पर लगा and smashed the statue. और उसको चूर चूर कर डाला। Okay, so the head, and then later on Daniel explains the dream. उसके बाद दानियल इस स्वप्न को समझा रहा है। He says, see, king, the head is the head of gold. That is you. That is the Babylonian kingdom. तो बोलता है कि जो सिर सोने का है वो आप है, जिसके मतलब बाबुल का राज्य। Gold means, greatness, सोना यानी महानता, richness. एक अमीर या धन। So you are the head of gold. आप जो है सिर सोना है वो आप ही But हो। after you will come another kingdom. लेकिन आपके बाद जो है एक दूसरा राज्य आएगा। Right? And that kingdom will be iron and clay mixed. That means what? Silver, I think it's silver and, hold on, let me see. Yes. Silver, it's chest and arms of silver. उसके छाती और भुजाएं जो चांदी के थे। Now, so the second kingdom will be not as strong as your kingdom, but that kingdom will take control. जो दूसरा जो राज्य आएगा आपके समान सामर्थ्य तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो जो है राज्य को ले लेंगे। So if you look at the Bible, what happens is that same night, यदि आप बाइबल को देखेंगे तो क्या होता है, उसी रात King Darius comes and overpowers the Babylonian kingdom. तो दरियस राजा आता है और बाबिलोन पर विजय प्राप्त कर लेता है। Darius was from the Persian kingdom. दरियस जो है पर्सिया का, फारस का राजा है। Everyone understood this? Right? क्या आप समझ गए? Remember, they came and they destroyed the Babylonian kingdom. They took control. तो वे आए और बाबिलोन के राज्य को नष्ट कर दिया और उस नियंत्रण को वे ले But the लिए। Persian king, King Darius said, Daniel, you are a good king.
you remain as the king. तो लेकिन दरियस जो है बोले कि आप अच्छा व्यक्ति हो, आप जो है राज्य में बने रहो। So that's why he liked Daniel. He didn't want to throw Daniel in the lion's den. You remember? तो आपको याद है, इसलिए वो दानियल को पसंद करता था, वो सिंह के मांग में उसे नहीं डाला। But that kingdom was not as strong as the Babylonian kingdom. लेकिन वो राज्य जो है बाबिलोन के राज्य के समान जो है सामर्थ्य नहीं था। Then he says another kingdom comes after that, और वो बोलता है कि उसके बाद एक राज्य आएगा, and that kingdom will also be a very strong kingdom, वो भी जो है एक मजबूत राज्य होगा। right? And that kingdom is called is from Greece, वो जो यूनान से होगा। right? And in Daniel chapter 7, Daniel explains of the 4 beasts that comes from Greece. दानियल 7वें अध्याय में दानियल 4 प्राणियों के बारे में बताता है, वो जो यूनान से आता है। How many of you have heard of Alexander the Great? कितने लोग सिकंदर महान को जानते हैं? So it is that kingdom, the Greece, where Alexander the Great had 4 main generals. तो जो सिकंदर महान का जो है 4 मुख्य सेनापति थे, From 4 generals it becomes 2 kingdoms. और 4 में से जो है 2 राज्य बन गए From थे। 2 kingdoms it becomes 1 kingdom. 2 राज्यों में से एक बन गए। Then it says the 4th kingdom comes. तो उसके बाद वो बोलते हैं कि चौथा राज्य आएगा। What does it say? क्या बताता है? The legs of iron, its feet partly of iron and partly of baked clay. तो उसके जो पैर जो है लोहे के होंगे, और जो उसके पाँव जो है आधा लोहे का आधा मिट्टी का The होगा। feet of iron is the Roman kingdom. तो जो लोहे का जो पैर बताया गया वो जो रोमी साम्राज्य। So after Greece, Alexander the Great was a mighty king. तो ये यूनान के बाद जो सिकंदर महान जो महान राजा था, After that came the Roman kingdom. उसके बाद रोमी राज्य आ And the जाता Roman है। kingdom again was a very strong kingdom. That's why iron, solid kingdom. रोमी राज्य भी उसके बाद बहुत ही सामर्थ्य हो जाता है, क्योंकि वहां लोहा बताया गया, इसलिए वो मजबूत है। Then the Roman kingdom was overpowered तो उसके बाद जो रोमी साम्राज्य पर विजय by प्राप्त कर लेते, European nations. तो यूरोप के जो देश है वो उनके द्वारा। That is why the feet, the 10 toes are made of clay. इसलिए जो उसकी उंगलियां जो है मिट्टी से बनी हुई रहती है। And this clay is clay strong? क्या अगर मिट्टी कभी मजबूत होती है? Clay. Is clay strong? होती है नहीं। Right? What do you say clay in Hindi? मिट्टी Soft, wet clay. जो कीचड़ के समान गीला होता है उस मिट्टी It's को। not strong, but the कुम्हार। toes were made of that. तो ये उनके जो पैर के उंगलियां जो है उसके बने हुए थे। So the whole statue is standing on weak ground. तो ये पूरा मूर्ति जो है एक कमजोर स्थिति में खड़ी है। So that is the present day we are in, तो वो ही अभी जो है हम अभी वास्तव में अभी वर्तमान जो where स्थिति the है वो है। European kingdom took over, and then after that came many other kingdoms. So right now, we are in this kingdom. तो यूरोप के राज्य हैं, उसके बाद कई सारे राज्य हैं, अभी जो है हम इस राज्य में है। Then the iron and the clay, the bronze and the silver, the gold were broken to pieces at the same time. तो यहाँ देखते हैं कि लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी सभी जो है एक ही समय में चूर-चूर किया And गया it है। says that a rock cut out came and hit that feet of the statue. तो ये बताया गया कि एक पत्थर जो है किसी के बिना खोदे अपने आप उकड़ कर आकर उस मूर्ति पर टकराता है। It's talking about that rock coming and hitting the statue is talking about the end times. तो जो पत्थर आकर उस मूर्ति पर टकरा रहा है वो जो है अंतिम समय को बता रहा है। That rock is Jesus, who will come and destroy the kingdom of the Antichrist. तो वो पत्थर जो है यीशु मसीह के बारे में बताती है, यीशु मसीह आकर जो मसीह विरोधी को हरा देंगे। Now imagine, कल्पना कीजिए, Daniel is writing this and he interpreted this more than 1,000 years ago. दानियल जो है इसका जो व्याख्या दे रहा है, इसको जो लिखा है वो हजारों साल पहले लिखा है। Saying there will come another kingdom, a future kingdom, God's kingdom, that will destroy this entire statue, all the kingdoms, and that will be an eternal kingdom. तो बता रहे हैं कि यीशु मसीह का जो राज्य के बारे में बता रहे हैं, एक ऐसा राज्य आएगा, ये सारे राज्य को हरा कर वो अपने अनंत राज्य को बनाएंगे।
Right? So if you look at what's happening now, there's so much of conflict in the Middle East. तो आप ये देख पाएंगे कि जो मध्य पूर्व में बहुत कुछ बातें हो रही है, Right? So Iran, Iraq, and all these kingdoms, ईरान, इराक, इन सारे राज्य में we are in that divided kingdom. हम जो बटे हुए राज्य में हैं, Right? There's so much of division among people. लोगों के बीच में बहुत ही विभाग है. Islam, Jews, Christians, all of us are so divided. इस्लाम लोग है और यहूदी लोग है और मसीह लोग है, सारे लोग बटे हुए हैं. But when Jesus comes, the rock signifying Jesus, तो जब यीशु आएंगे, जो ये पत्थर जो यीशु मसीह को दर्शाता है, he will destroy that kingdom, उन राज्य को जो है यीशु मसीह नष्ट कर देंगे, and his kingdom will rule and reign. यीशु मसीह का जो राज्य है वो राज्य करेंगे और शासन करेंगे. Now let's go to Daniel chapter 7. आइए दानियल 7वां अध्याय में जाएं. In Daniel chapter 7, again Daniel he's in prayer. तो दानियल 7वां अध्याय में जो दानियल जो प्रार्थना कर रहा है, And in his prayer, God is speaking to him in a dream. परमेश्वर उसके प्रार्थना में उससे बात कर रहे हैं जैसे स्वप्न के द्वारा. Let's read Daniel chapter 7, verse 1 through maybe 8. दानियल 7वां अध्याय का 1 से लेकर 8 तक के वचन पढ़े. बेबीलोन के राजा बलस्तर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे. तब उसने वह स्वप्न लिखा, अब बातों का सारांश भी वर्णन किया. दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि इस महासागर में चारों ओर आंधी चलने लगी. तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए. पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे. मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि में पर से उठाकर मनुष्य के समान पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया. फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रिछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा. इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया. फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के से दांत है. वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है. वह सब पहले जंतुओं से भिन्न और उसके 10 सिंग थे. मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखड़े गए. फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है. Yeah, okay. Read even verse 11 onwards, 11 to verse 14. 11 से लेकर 14 तक पढ़े. उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया. शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया. मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उनको वह उसके समीप लाए. तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो और उसकी प्रभुता सदा अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा. Okay, now I know there are so many things happening here in Daniel 7 also. दानियल 7वां अध्याय में भी बहुत सारी चीजें हो रही है. First, he sees a lion with wings. तो पहला वो देख रहा है कि सिंह जो जिसका पंख है. The lion represents the Babylonian kingdom. जो ये सिंह के बारे में बताया गया वो जो है बाबिलोन के राज्य को दर्शाता है. Then he sees a bear. उसके बाद एक भालू को देखता The है. bear refers to the Medo-Persian kingdom.
तो मीडिया और पर्सिया का जो राज्य है उसको दर्शाता है। Then he sees a leopard with 4 wings, उसके बाद चीता को देखता है जिसके 4 पंख है, which is the kingdom of Greece. जो यूनान राज्य है। Then he sees a beast with iron teeth, with और एक ऐसा पशु को देखता है जिसके लोहे के दांत है, that is the Roman kingdom. वो रोमी राज्य है। And this beast had 10 horns. तो उसका 10 सिंग है। What is the 10 horns? 10 सिंग क्या है? That means from this divided Roman kingdom will come the Antichrist. जिसके मतलब ये विभाजित रोमी राज्य से जो है मसीह विरोधी आएगा। And then we see there were 10 toes, and this 10 refers to the 10 nation confederation. Remember we said the beast will have 10 nations control over him. क्या आपको याद है, आप जो पशु है 10 देशों पर गठबंधन बनाएगा? Right? Now remember, Daniel is writing before John. याद रखें, दानियल जो है यूहन्ना प्रेरित से पहले लिख रहा है। John wrote from the sea will come one beast. तो यूहन्ना लिख रहा है कि समुद्र में से एक पशु आएगा। But God is revealing it differently here to Daniel. लेकिन यहाँ परमेश्वर जो दानियल को भिन्न तरीके से प्रकट कर रहे He's हैं। saying there will be 10 horns तो वो बता रहे हैं कि 10 सिंग होगा, from 10 kingdoms, 10 toes, 10 kingdoms. 10 उंगलियों से 10 राज्य। And this, out of that will come the beast. तो उसमें से जो है पशु आएगा। And it says here, then I watched, verse 11, then I continued to watch because of the boastful words of the horn that was speaking. Who's that horn? तो मैं यहाँ देख रहा था कि मतलब जो बड़ी बोल बोलने वाला छोटा, वो सिंह कौन है? Who's the horn? वो सिंह कौन है? Who's speaking the boastful words? ठीक बड़ा बोल कौन बोल रहा है? The Antichrist. मसीह विरोधी। See, so Daniel chapter 2, Daniel chapter 7 are two different dreams, but they mean the same. दानियल दूसरा अध्याय और दानियल 7वां अध्याय दोनों अलग अलग स्वप्न है, लेकिन उन दोनों का अर्थ एक ही है। This is why I said, where's my brother? If you go to the book of Daniel, in the beginning, what will happen? तो यदि शुरू में हम दानियल के पुस्तक में गए होते तो क्या होता? गड़बड़ी में पड़ Would you जाते। understand this if I start with this? क्या आप समझ गए? किससे समझे होंगे? इससे क्या इससे शुरू करना था? Yes or no? आया नहीं? So now at least little you are understanding because the whole thing is explained. क्योंकि पूरी बातें आपको समझाएगी, इसलिए थोड़ा बहुत तभी आप समझ पा रहे Because हैं। Daniel is even more complicated than Revelation. क्योंकि दानियल जो है प्रकाशित वाक्य से बहुत ही जटिल है। But you understand what's happening here. लेकिन आप क्या समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? Daniel 2, दानियल 2, Daniel chapter 7. दानियल 7वां अध्याय, Daniel 2, this is the dream. दानियल 2 अध्याय में ये उनका It's a स्वप्न है, statue. एक मूर्ति है। But in Daniel 7, it is animals he's seeing. लेकिन दानियल 7वें अध्याय में आप जो है जंतुओं को देख रहे But हैं, both, the meaning is the same. लेकिन दोनों का अर्थ जो है कि है Babylonian kingdom, बाबिलोन का राज्य, Medo-Persian kingdom will come, मीदो पर्शिया आएगा, Greece will come, यूनान राज्य आएंगे, the Roman kingdom will come, रोमी राज्य आएगा, then will come another kingdom after the Roman kingdom. रोमी राज्य के बाद और दूसरा राज्य Out of आएगा, that will come 10 horns. उसमें से 10 सिंह आएंगे। And out of those 10 horns, one horn will rise up. उस 10 सिंह में एक सिंह जो है खड़ा होगा, That will be the Antichrist. वो मसीह विरोधी होगा। Both different dreams meaning the same. दोनों अलग अलग स्वप्न हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। Then in Daniel chapter 8, Daniel has another dream. तो दानियल 8वें अध्याय में दानियल और एक सपना देख रहा है। Daniel chapter 8. दानियल 8वां अध्याय, Let's read verse 3 onwards, and I'll stop you in between. 3 से लेकर पढ़े, वचन 3, 8वां अध्याय का वचन 3 से लेकर। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सिंग वाला एक मेढ़ा खड़ा है, और दोनों सिंग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सिंग मारता है, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है, और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। मैं सोच ही रहा था, तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय
भूमि पर पांव न छुआया। और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सिंग था। वह उस 2 सिंग वाले मेढ़े के पास जाकर उसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था। उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके 2 सिंगों को तोड़ दिया और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर लौट डाला और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंग टूट गया और उसके बदले देखने योग्य 4 सिंग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। फिर इनमें से एक छोटा सा सिंग और निकला जो दक्षिण पूर्व से और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर लौट डाला। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र स्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई। और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों को रौदा जाना कब तक होता रहेगा। तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो तब तक वह होता रहेगा, वह पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। Okay, which verse are you in? 14. तब उसने मुझसे Yes, कहा, yes. Okay, stop at 14. Now, Daniel is having a dream of a vision of a ram and a goat. दानियल जो है एक मेढ़ा और बकरे का दर्शन देख रहा है। Now he's seeing a ram, एक मेढ़े को देख रहा है, 2 horns, 2 सिंग है and उसका, he's seeing a goat. और एक बकरे को देख Right? रहा है। Now, let me explain what this is. तो मैं आपको बताता हूँ ये Again, क्या है। even this dream is connected to the Daniel chapter 2 and Daniel 7. ये भी सपना जो है दानियल 2 अध्याय और 7वां अध्याय से जुड़ता है। The 2-horned ram represents the Medo-Persian kingdom. जो 2 सिंग वाला मेढ़ा जो है मेदो पर्शिया राज्य को दर्शाता है। So it is 2 kingdoms, the Medos and the Persians, 2 kingdoms, 2 rams. ये 2 राज्य मेदो और पर्शिया के फारस के 2 सिंह को And दर्शाता then है। the goat represents the Greece, kingdom of Greece. तो ये बकरा जो है यूनान देश का उस राज्य को बता रहा है। And the big goat had a big horn. तो ये जो बड़ा बकरे का जो है बड़ा सिंह है, That means he had big authority. जिसके मतलब उसका बड़ा अधिकार है। That man is Alexander the Great. वो जो है सिकंदर महान है। It says that he went to the north and south and he attacked many kingdoms. तो बोले गए कि उत्तर और दक्षिण गया और बहुत सारे राज्यों पर आक्रमण Now, किया। if you read the story of Alexander the Great, he had 4 generals. यदि आप सिकंदर महान का कहानी को पढ़ेंगे तो उसका 4 सेनापति थे। Right? So read verse 22. तो 22वां वचन पढ़े। That large horn was replaced with 4 horns. तो 22 वचन बता रहा है कि जो बड़ा जो सिंह है वो जो 4 सिंहों से बदल गया। Alexander the Great was in Greece. He was the large horn. तो सिकंदर महान जो यूनान में था वो बड़ा सिंह है। That large horn became 4 horns. तो वो जो बड़ा सिंह जो है 4 सिंह बन गए। Alexander the Great had 4 generals. तो सिकंदर महान का 4 सेनापति So थे। when he died, his kingdom was divided into 4 people. जब वो मर गया तो उसका राज्य 4 भागों में 4 लोग उसको बांट लिए। Then that 4 kingdoms became 2 kingdoms. वो 4 राज्य 2 राज्य बन गए। And it became 1 kingdom at last. तो आखिरी में वो 1 राज्य बन गया। And from that came the main beast. तो उसमें से जो है मुख्य जो पशु है वो आया। So Daniel chapter 2, तो इसलिए दानियल 2 अध्याय, Daniel 7, अध्याय 7, Daniel 8, तो 8वां अध्याय, all are talking about. So what Daniel is doing is he's explaining from where the kingdoms will come and how the beast will come into his existence. इन सारे बातों में दानियल क्या बता रहा है कि वो कहाँ से ये सारे आएंगे और आखिरी में किधर से वो पशु निकलेगा इसके बारे में बता रहा है। See, now a few things we'll catch here. Daniel 7, तो कुछ चीजों को हम यहाँ देखेंगे। दानियल 7वां अध्याय, okay, verse okay, let's read from verse
19. 19वां वचन से Okay. पढ़े। Now from here he's explaining how the beast, the Antichrist, is going to come. तो यहाँ से लेकर वो बता रहा है कि कैसे मसीह विरोधी वो पशु आएगा, इसको बता रहा है। Read. तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, जो अन्य This fourth beast, which was different from other beasts. ये चौथा जो जंतु था और जंतुओं से भिन्न था, Read. जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुओं को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सिंह के निकलने से 3 सिंह गिर गए, अर्थात जिस सिंह को आंखें और बड़ा बोलने वाले मुंह और सब। The eyes were big and spoke boastfully. तो आंखें बड़ा बोल रहा था वो। Who is this about? All of this is about the Antichrist. ये किसके बारे में? सब जो है मसीह विरोधी के बारे में है। No, so you see how he's writing from his understanding. आप देख पा रहे हैं वो कैसा अपना Go on. समझ के अनुसार लिख रहा है। और सब अन्य सिंहों से अधिक भयंकर था। And he spoke boastfully. That's what he says, right? It was very terrible. Verse 20. Okay, you just translate. Hold on, don't read, okay? Let me help you understand this. So, verse 21. As I watched, this horn was waging war against the saints and defeating them. तो जैसे मैं देख रहा था, ये सिंह जो पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। So you'll see two things. You'll see the word beast, you'll see the word horn. तो यहाँ देख पा रहे हैं कि अब पशु और सिंह दोनों को देखा है, दो शब्द Who's the को। horn? तो सिंह कौन है? What is he doing? वो क्या कर रहा है? It says here, he was waging war against the saints. Was he doing that? यहाँ बताया गया कि वो पवित्र लोगों के विरोध में युद्ध कर रहा है। क्या वो कर रहा है? Yes? Okay. Then it says, verse 22, until the Ancient of Days. Now he's not writing Jesus. He So doesn't know Jesus. तो यीशु मसीह के जब तक वो अति प्राचीन ना आया, When we read the book of Revelations, तो you can जब say the Messiah and all of that. But here he's saying until the Ancient of Days. So he's writing about God coming. तो हम जब प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो मसीहा करके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ दानियल लिखते हुए परमेश्वर को आते हुए बता रहा है। And it says the Ancient of Days came and pronounced judgment on the saints. What is this? तो न्याय ना पवित्र लोगों का न्याय करेगा। Remember the battle of Armageddon? He stands and he pronounced judgments against the enemy. He stands for Israel. तो अर्मगदन के युद्ध याद है, वो खड़े रहते हैं और अपने लोगों के विरुद्ध में वो न्याय करते And हैं। he possessed the kingdom. तो वो राज्य को प्राप्त कर लेते 1,000-year हैं, millennium. 1000 साल के राज्य। The fourth beast and its fourth kingdom that will appear on earth, तो चौथा जंतु और जो चौथा राज्य जो पृथ्वी पर होगा, it will be different from all other kingdoms वो बाकी राज्यों से भिन्न होगा and will devour the whole earth. और सारे पृथ्वी को वो नाश कर देगा। Who's the fourth beast? चौथा जंतु कौन है? I don't know. Okay, the 10 horns and the 10 kings who will come 10 सिंह और 10 राज्य जो आएंगे, from this kingdom इन राज्यों में will से rise up. तो Look आएगा at verse 25. He will speak against the Most High. वो जो परम प्रधान के विरुद्ध में बात करेगा। Who speaks against the Most High? परम प्रधान के विरुद्ध में कौन बात करता है? What does he do? वो क्या करता है? That's what it is. He speaks against the Most High 3.5 years. वो Then 3.5 साल के लिए परम प्रधान के विरुद्ध में बात करता he है। will speak against the Most High and oppress his saints and try to change the times and laws. The saints will be handed over to him for a time and half a time. पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों को और व्यवस्था को बदल देने की आज्ञा देगा, वरन 3.5 काल तक वो सब कुछ Okay. करता रहेगा। Now, in the ancient times, one time means 1 year. तो पुराना समय में जो है एक समय यानी 1 साल, 1 week is 7 years. तो एक सप्ताह जो है 7 वर्ष है। What is one time? एक समय क्या है? How many times here? यहाँ कितना समय लिखा गया है? Time. What does it say? तो Time. It's not in Hindi. 1 year. It's not in Hindi. Okay. In English it says, one time is 1 year. तो एक समय यानी 1 साल। So in English it says times and half a time.
तो यहाँ बताया गया कि समय, समयों और आधा समय। Time 1 year. समय यानी 1 साल, Times 2 years. समयों यानी 2 साल, Half a year. हाँ आधा समय यानी आधा 1 साल। plus 2 plus half. एक के साथ 2 What happens 3.5 years? 3.5 साल क्या होता है? It says here, the saints will be handed over him for a time, a times and half a time. 3.5 years of the great tribulation. तो वरन 3.5 साल तक के लिए जो है महान क्लेश होगी। But look at it. The court will sit and his power will be taken away and completely destroyed. तो ये बताया गया परंतु तब न्याय बैठेंगे और उसके प्रभुता छीन कर मिटाई जाएगी। See, that's why Revelations at least says 3.5 years. तो कम से कम प्रकाशित वाक्य में तो 3.5 साल ऐसा लिखा है। Daniel is saying time, times, half a time. We'll be wondering what is that. तो दानियल जो है समय, समयों और आधा समय बोल रहे हैं, तो हम क्या है सोचते रह See, जाएंगे। that's why I said he's writing with his understanding. इसलिए मैं कह रहा था कि वो जो है अपना समझ के अनुसार लिख रहा है। In his mind, he's seeing the vision. Oh, 3.5 years. Time, times, half a time. उसके मन में 3.5 साल यानी समय, समयों और आधा समय। For 3.5 years, the Antichrist will attack and overpower the believers. तो 3.5 साल के लिए जो है ये मसीह विरोधी विश्वासियों को पराक्रम करेगा और उन पर प्रबल हो जाएगा। Then he says, but the court will sit and God's kingdom will come and be established. तो बाद में बता रहे हैं कि न्याय बैठेंगे, इसके मतलब जो परमेश्वर का राज्य आएगा। Everyone, like, you're understanding this? क्या इस बात को सब समझ रहे हैं? So you see how Daniel got the vision and how John got the vision. It's very different. तो आप देख रहे हैं कि जैसा दानियल ने दर्शन देखा और यूहन्ना ने जो दर्शन देखा, दोनों बिल्कुल अलग है। Daniel chapter 2, Daniel chapter 7, Daniel chapter 8, all of them are dreams that talk about the kingdoms and out of which comes the Antichrist. तो दानियल 2वां अध्याय, दानियल 7वां अध्याय, दानियल 8वां अध्याय, सभी स्वप्न जो है इन राज्यों के बारे में बताती है और इन राज्यों में से मसीह विरोधी आएगा इसके बारे में बात करती है। Okay. Now, if you go to Daniel chapter 9, यदि आप दानियल 9वां अध्याय में जाएंगे, you see this whole thing of 70 weeks. तो or वहां आप जो है पूरा 70 सप्ताह के बारे में देखेंगे। 77s. 70 बार 7 बार। Now, in Hebrew, 1 week is 7 years. इब्रानी भाषा में जो है एक सप्ताह जो है 7 साल है। So, Daniel chapter 9, verse 20 onwards. दानियल 9वां अध्याय का 20वां वचन से लेकर 20 to the end. Can we read that, please? 20 से लेकर आखिरी तक पढ़े। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा विनती करता ही था। Okay, hold on. Let's take a break and come back and continue. 10:20 is the break, right? We'll take a break and come back. And this part is very interesting. If you are not interested in Daniel, don't come back. ये बहुत ही रुचिपूर्ण बात है। अगर इसमें आपको रुचि नहीं है तो वापस ना आए, ब्रेक में वहीं से चले जाए।